Hello students, welcome to our next lecture on the limits of several variable. आज सबसे आसान तरीके से समझेंगे why there is a need of our today's lecture. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now if I ask you all of you, can you compute the following limits? Of course you can do. ये सब आपने अपने 10+2 और स्कूल लेवल में करा होगा. Like what is the limit of the third part is minus of 2. What is the limit of the second part? It's my infinity. What is the limit of the first part? Does not exist. Fine. But make sure students, जब कभी भी आप लिमिट की बात करो, whenever you are talking about the limit, the most important thing is whatsoever the answer is there, that must be unique. Fine. अगर ये यूनिक नहीं होगा, then the limit does not exist. Like you can say the answer of this case is a -2, which is my unique number. However, if you look about the first part and if you calculate the limit from the left hand side, 0 minus, you will get answer is minus infinity, and whenever you compute the limit from the 0 positive, you will get plus infinity. आप देखो दोनों आंसर अलग अलग है. That means the limit is not unique. और अगर आपका लिमिट यूनिक नहीं होगा, then the limit does not exist always. However, if you compute the limit of the second part, either from the left hand side or from the right hand side, you will get limit as a infinity, which is a unique number. Therefore, the limit of the second and the third is existence, while the first part does not exist. Student, you have to pay more attention on the word unique. Fine. लिमिट का आंसर कुछ भी आए लेकिन वो यूनिक होना चाहिए. Now, if I ask you how you can find the limits of these three questions, अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखा हो, what is the domain of these limits function? आप देखो डोमेन क्या आपकी एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन आपके पास क्या होता है, दैट इज R2 प्लेन. फाइन. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द मल्टी वेरिएबल कैलकुलस and called as the limit of the function of several variable. You can follow my playlist calculus 1, fine, mathematics 1 calculus, और इस playlist के अंदर आपको सारे lectures according to your syllabus सब आपको 1 by 1 मिल जाएगा आपको. फाइन. और आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, आपको कहीं भी और किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ द फर्स्ट लेक्चर इज इन आवर सिलेबस इज द लिमिट ऑफ द सेवरल वेरिएबल. Several variable means whenever you have a function of more than one variables. I like xy, like xyz, and so on. Fine. So before I directly move on the formula or the examples, let me give you some motivation. पहली मोटिवेशन क्या होनी चाहिए कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. फाइन. इफ यू लुक अबाउट द फर्स्ट साइड, व्हाट इज द डोमेन? व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज, you can see the limit is only x, so the domain is my only real line, like of this case from minus infinity to plus infinity. But if you look about the second case, these are the domain of my xy plane, और आपका आंसर जो है वो इसी डोमेन के ऊपर डिपेंडेंसी है. like what you did in your lower classes, आप लिमिट कैसे निकालते थे? आप लिमिट x approaches a negative and limit x approaches a positive of the fx. अगर दोनों की लिमिट सेम आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिक. फाइन. अगर इसकी भी लिमिट a है और इसकी लिमिट भी a है, देन यू कैन से द लिमिट एग्जिस्टेंस. फाइन. बट क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि why we can only taken as a नेगेटिव एंड a पॉजिटिव, मैं यहां से भी तो कोई ऐसा भी तो आ सकता था. फाइन. क्यों हम अकेला a नेगेटिव और a पॉजिटिव लेते हैं? द रीजन इज डोमेन. इसकी डोमेन क्या आपकी? द डोमेन इज माई ओनली r. तो r इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. अब आप इस a पॉइंट को देखिए, इस a पॉइंट पे आप कैसे आ सकते हो? आप हाउ यू कैन रीच एट द पॉइंट a? कोई बता सकता है? या तो लेफ्ट से आ सकते हो या राइट से आ सकते हो. इज इट पॉसिबल यू कैन रीच फ्रॉम दिस साइड? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये जो पॉइंट आपका किसका है, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स वाई. तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? R2. लेकिन आपकी डोमेन तो सिंपल R है.
Fine. So how many ways you can reach at the point A? There are only two ways. One is from the left hand side and second is from the right hand side. Fine. That's why in your lower classes you always compute the limit as A negative and A positive. However, if you consider the domain is my R2, X and Y, then how many ways you can reach at the point A, B? एक तो आप वर्टिकल एक्सिस से आ सकते हो, हॉरिजॉन्टल से आ सकते हो, एनी अदर वे यू कैन मूव फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, यहां से भी आ सकते हो आप, और कोई वे यू कैन मूव फ्रॉम द पैराबोला. फाइन. आपका टारगेट है सिर्फ इस पॉइंट को रीच करना. सो देर आर इनफाइनाइटली मेनी वेज. यू कैन अप्रोच इधर एज ए हॉरिजॉन्टली, यू मे अप्रोच एज ए वर्टिकली, डायगनली, पैराबोलिक, सर्कल. आप सर्कल भी बना सकते हो ना जो इस पॉइंट से पास करे आपके लिए, और मेनी अदर पाथ्स. तो क्या आपके लिए, मान लीजिए एक पाथ आपने ये ले लिया, दैट इज अ लाइन ऑफ y इज इक्वल टू x. दूसरा आपने लाइन ले ली हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज अ पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू a. थर्ड आपने लिख लिया y इज इक्वल टू b एंड सो ऑन. तो क्या, ये तो मैंने अभी 3 पॉइंट्स लिखे ना, 4 डायरेक्शंस लिखी हैं, एंड यू हैव द इनफाइनाइटली मेनी पाथ. क्या आपके लिए पॉसिबल है हर पाथ के ऊपर आपको लिमिट निकालनी? मतलब पहले y इक्वल टू x इसमें फिल करो और लिमिट निकालो, फिर x इक्वल टू a इसमें फिल करो, लिमिट निकालो, और चेक करो सभी की लिमिट यूनिक आएगी कि नहीं आएगी. एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. फाइन. सो दैट विल मेक द मल्टी वेरिएबल लिमिट्स इज अ मोर चैलेंजिंग. इज इट क्लियर? अब मैं आपको कुछ मोटिवेशन एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको क्लियर हो कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है. First one is a Google Map. All of you have used the Google Map. So I can assume that you are traveling to your university by using the Google Map. तो Google Map क्या दिखाता है? From your current location, they will show the different roads, different path, but destination same होगी ना आपकी university. Fine. You may take as a highway, you may take as a city road, you may taken as a shortcut, or you may taken as a village road, or many more. लेकिन ये सभी पाथ्स जो दिखाएगा, इसकी डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन इज ऑलवेज सेम, योर यूनिवर्सिटी. फाइन. ऑल्दो द पाथ्स आर डिफरेंट बट यू आर रीचिंग एट द सेम यूनिवर्सिटी. इसका मतलब अगर आपका डेस्टिनेशन ये है तो चाहे आप इधर से आइए, चाहे इस तरफ से आइए, चाहे आप इस तरह से घूम के जाइए, फाइन, लेकिन आप पहुंचोगे सेम लिमिट पे ही. दैट मीन्स हर तरफ से आपका आंसर क्या आएगा? सेम लिमिट, दैट इज एल, लिमिट इज देयर. बट अज्यूम दैट अगर आपको गूगल मैप हर पाथ के ऊपर अलग अलग लोकेशन शेयर कर दे, सो वुड यू ट्रस्ट ऑन द गूगल मैप? ऑफ कोर्स नॉट. क्यों करोगे आप जब वो आपको हर जगह अलग लेके भेज रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपने ये पाथ फॉलो करा है, आपका डेस्टिनेशन ये है मान लो, अगर आपने ये लाइन फॉलो करा है तो वो आपको यहां ले जा रहा है. अगर आपने सर्कल को फॉलो करा है मान लीजिए, वो आपको एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर ले जा रहा है. अगर आपने पैराबोला को फॉलो करा है वो आपको यहां पे छोड़ के जा रहा है. सो दैट मीन्स द डिफरेंट पाथ हैज डिफरेंट लिमिट्स. तो इसका मतलब डेस्टिनेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं हुई. फाइन. तो इसका मतलब आप क्या अपने यूनिवर्सिटी के टारगेट पे पहुंच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाओगे. दैट मीन्स द पॉइंट वेयर यू अप्रोच इज कॉल्ड एज द डेस्टिनेशन इज नॉट अचीवेबल. Why? Because the roads, or you can say the paths, are my different. तो same way, this is the exact philosophy of the limit. अगर different path produce the different answers, then the limit does not exist. Why? अगर different answers हो गए, that means the limits जो है उसकी not a unique. और मैं पहले बता चुका हूं आपको, अगर किसी भी चीज की लिमिट यूनिक नहीं है, that implies limit does not exist. सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं, वेरी फनी एग्जाम्पल. वन बॉयफ्रेंड्स एंड द टू गर्लफ्रेंड्स. सपोज वन बॉय हैज अ टू गर्लफ्रेंड्स. डोंट बी लाफ, दिस इज जस्ट द मैथमेटिकल एग्जाम्पल. फाइन, डोंट वरी, इट मे हैपन्स दैट बट इट इज यूजुअली नॉट हैपनिंग. सो सपोज अ वन बॉय हैज अ टू गर्लफ्रेंड्स, और उस बॉयफ्रेंड ने दोनों गर्लफ्रेंड को सेम टाइम पे सेम मैसेज सेंड करा, मीट मी एट आवर फर्स्ट साइट प्लेस. जहां पे ये दोनों मिले होंगे पहली बार, वहां पे मिलने को बुलाया 5 PM पे. Fine. So the message is sent to both the girlfriends. Find the girlfriend A reach at the coffee cafe while the girlfriend B reach at the shopping mall. Fine. इसका मतलब क्या हुआ? गर्लफ्रेंड A जो है उस लड़के को कॉफी कैफे में मीट हुई थी पहली बार, और गर्लफ्रेंड B जो है वो शॉपिंग मॉल में मीट हुई थी. तो कैन यू से
द बॉयफ्रेंड विल मीट बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम? ऑफ कोर्स नो। दोनों जगह पे कैसे चला जाएगा वो? फाइन, सो आंसर विल बी नो। सो इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स द डेस्टिनेशन इज डिपेंडेंट अपॉन विच गर्लफ्रेंड्स के। फाइन, तो दैट मीन्स सिमिलरली once we can approach the same point through the two different path, अगर उसकी लिमिट सेम नहीं है then you will get the limit does not exist. फॉर एग्जाम्पल, मान लो वो पहले पास से गया, उसकी लिमिट अप्रोच कर गई 5 को, एंड सेकेंड पास से लिमिट इज माई 8 एंड क्लियरली से 5 इज नॉट इक्वल टू 8. तो कैन यू से बोथ द लिमिट्स आर सेम? एब्सोल्युटली नॉट. तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब वो बॉयफ्रेंड का पत्ता कट जाएगा. फाइन, सो जस्ट लाइक अ boyfriend can't be waiting at the two different places at the same time. Similarly, a function can't have the two different values at the same point. Fine. Or you can say just like a boyfriend girlfriend relations, in the mathematics also we always like a faithful limits. So इस आइडिया को मैथमेटिशियन ने कैसे इंप्लीमेंट करा? फाइन, सो एग्जैक्टली द सेम आइडिया इज इंप्लीमेंटिंग. आइडिया मतलब ये नहीं कि हर बॉयफ्रेंड दो गर्लफ्रेंड बनाने लग जाए, ये आइडिया नहीं है. आइडिया क्या है कि हर पाथ पे, डिफरेंट पाथ पे सेम लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी. सो व्हाट डू द मैथमेटिशियंस डू? सो उसने क्या करा, मैथमेटिशियन ने एक टू पाथ टेस्ट के नाम से एक वेरी वेरी क्लेवर अप्रोच बनाई. फाइन, टू पाथ टेस्ट क्या कहता है कि मान लो आपको यहां पहुंचना है और एक आपने पाथ ले लिया दिस वन, फाइन, और सेकंड पाथ ले लिया आपने इस तरह से घूम के आते हुए ये वाला, द पाथ ए एंड द पाथ बी. अगर तो ये दोनों पाथ से लिमिट की वैल्यू सेम आ गई, लिमिट इन द सेंस अगर आप दोनों पाथ से सेम पॉइंट पे रीच कर गए, देन यू कैन से द लिमिट एग्जिस्टेंस. मान लो कि अगर आपने एक और पाथ लिया हो, थर्ड पाथ लिया आपने इस तरह से वाला, तो आपको वो यहां पे छोड़ दे रहा है, तो क्या इसकी लिमिट, ये सी पाथ की लिमिट, क्या आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए? सी पाथ से नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब डिफरेंट पाथ हैज द डिफरेंट लिमिट्स. तो उस केस में लिमिट डज नॉट exist, and that's a very very clever idea proposed by the mathematicians. Fine, so that means अगर आप एक पाथ से मूव करते हो, वो एक पाथ से चलते हो आप 5 पे पहुंच गए, और दूसरे पाथ से चलते हुए आप 8 पे पहुंच गए, एंड बोथ द लिमिट्स आर नॉट सेम, दैट मीन्स द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. फाइन, तो लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए यूनिकनेस होना जरूरी है. फाइन, सो देन by using the two path test we can easily say the limit does not exist. बट मेक श्योर स्टूडेंट्स, फाइन, ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसने पहला पाथ ले लिया हो उससे लिमिट 5 आ जाए, सेकंड पाथ ले लिया हो उससे भी 5 आ जाए, देन यू कांट से दैट लिमिट एग्जिस्टेंस. फाइन, लिमिट एग्जिस्टेंस यू कांट से दैट, बिकॉज अगर आप R2 पे हो, क्या इस पॉइंट को पहुंचने के लिए, ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए दो ही वे थे? हाउ मेनी वेज यू कैन रीच एट द पॉइंट ए? There are infinitely many paths. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and you have the infinitely many path. तो इसका मतलब अगर तो चाहे तो पहले एक तो ये है कि आप सारे इन्फाइनाइट पाथ लीजिए. अगर वो इन्फाइनाइट पाथ मान लो 10,000 है, तो सभी 10,000 पॉइंट के ऊपर आप लिमिट्स निकालिए और चेक करिए क्या ये यूनिक आ रही है. फाइन, अगर सभी पाथ पे यूनिक आएगी, देन यू कैन से द लिमिट इज existence, but it is not possible. So therefore the two path test is used to prove that limit does not exist. So two path test सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूव करना है लिमिट does not exist. और वो कैसे प्रूव करना है मैंने पहले बताया. कोई दो पाथ ले लो जिससे लिमिट अलग अलग आ जाए. मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा कैसे वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. अनदर एग्जाम्पल, फिर से फन एग्जाम्पल लेते हैं. मीटिंग एट ए कैफे. मान लीजिए बॉयफ्रेंड ने फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया, लेट्स मीट एट अवर फेवरेट कैफे 5 PM. अब उसने चालाकी खेली, उसने अब एक ही गर्लफ्रेंड को बुलाया. पहले दो को बुला के उसका पत्ता कट गया ना, अब उसने एक ही गर्लफ्रेंड को बुलाया, लेट मीट्स एट 5 PM. सो द गर्लफ्रेंड हैज मेनी ऑप्शंस टू रीच एट द कैफे. शी मे कम बाय द मेन रोड, शी मे कम बाय द मेट्रो, मार्केट रोड, और बाय थ्रू द एनी पाथ. लेकिन इस सबका डेस्टिनेशन क्या है? अगर वो कोई भी पाथ ले गर्लफ्रेंड, तो वो कहां रीच करेगी? नो मैटर व्हाट रूट शी कैन चूज, वेयर शुड शी फाइनली रीच? डेफिनेटली द कैफे, बिकॉज उसने कैफे ही बुलाया था ना आपको. एग्जैक्टली द कैफे. तो क्या आपके ऊपर कैफे पहुंचने के लिए
क्या ये पाथ मैटर करता है? नो, बिकॉज सबका लिमिट, सबकी डेस्टिनेशन तो सेम ही है ना, डेस्टिनेशन इज माई कैफे। फाइन, तो इस केस में तो उसकी लिमिट्स एग्जिस्ट कर जाएगी, मतलब उसका जो रिलेशन है वो सेफ रह जाएगा। फाइन, so that means the path may be different but the destination must be same one, so that is exactly the limits meaning. But अगर एक गर्लफ्रेंड रूट ले रही है, वन रूट विल टेक हर टू द कैफे, दूसरा रूट उसको शॉपिंग मॉल में ले जा रहा है और थर्ड रूट उसको सिनेमा में ले जा रहा है, सो विल द बॉयफ्रेंड बी हैप्पी? डेफिनेटली नॉट। अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने सेकेंड पाथ लिया तो वो पाथ उसको कहां जाके छोड़ेगा? वो शॉपिंग मॉल में, लेकिन उसने बुलाया कहां था गर्लफ्रेंड को? कैफे के अंदर। तब तो वो वेट ही करता रह जाएगा, गर्लफ्रेंड आएगी नहीं। फाइन, सिमिलरली अगर उसने फर्स्ट पाथ ले लिया हो देन वो रीच कर जाएगा, बट यू कैन सी ये दो अलग अलग पाथ उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाएंगे। फाइन, डिफरेंट प्लेसेस मीन डिफरेंट डेस्टिनेशंस। अगर डिफरेंट डेस्टिनेशन पे ले गए दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो विल द बॉयफ्रेंड बी हैप्पी? डेफिनेटली नॉट, because in that case destination dependent upon the path. Fine, so similarly you can say the mathematics functions will give the different value, then you can say the limit does not existence. So like say the true love and the true limit should not depend upon the path you chosen. तो जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ ट्रू लव और ट्रू लिमिट्स के ऊपर चूज करना, अदरवाइज दो गर्लफ्रेंड है तो दोनों को अलग अलग मैसेज का टाइमिंग देना आप भी। Another example is, suppose the 5 students leave the Patiala to reach the Delhi. One is taken by the National Highway 44, another by Express, Village Road, Google Map, and the another alternative routes. Fine. Should they reach all at the same airport? Yes, because the destination is same for all of them. So that means in that case, they will reach at the airport, so the limit existence. मान लो कि पहला जो स्टूडेंट है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे रीच कर गया। अनदर स्टूडेंट जो इसने सेकंड पाथ लिया था एक्सप्रेस वे, वो उसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे लीव कर दे रहा है, और जो बाकी पाथ लिए थे विलेज, गूगल मैप और ऑल्टरनेटिव रूट्स, दे विल रीच एट द जयपुर एयरपोर्ट। सो विल यू से दैट दे रीच एट द सेम डेस्टिनेशंस? नो, बिकॉज डेस्टिनेशन क्या थी आपकी? दिल्ली एयरपोर्ट, लेकिन वो तो चंडीगढ़ और जयपुर में चले गए। Fine, so this is a similar way we can say if the different paths produce the different answers, we can say the limit does not existence. Now how you can check it mathematically whether the limit existence or not? मैं फिर कह रहा हूं बच्चों बार बार, the two path test. Fine, two path test सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए काम आता है? Two path test is used only to show there does not existence the limit. There does not existence the limit. ये आपका काम है does not existence the limit के लिए, तो ही आप टू पाथ टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। चलिए, आपको कहां रीच करना है? 0,0 पे, तो ये आपका 0,0 है। कितने तरीके हैं आपके पास इस 0,0 पे पहुंचने के लिए? एनीवे, एक तो आप इधर से आ सकते हो, वन वे। सेकेंड, आप ऐसे आ सकते हो घूमते हुए, फाइन, दैट इज अ हेलिक्स। फाइन, और आप एक सर्कल के थ्रू आ सकते हो, नीचे से आप पैराबोला के थ्रू आ सकते हो। फाइन, जो जीरो को क्रॉस करता हो। तो आपका काम है जितने भी ये पाथ बनेंगे सभी के ऊपर, लाइक अगर आपने ये पाथ लिया है y इक्वल टू एक्स, तो आप इसमें पुट करिए y इक्वल टू एक्स और लिमिट निकालिए आप। अगर आपने सर्कल लिया है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें फिल करिए और लिमिट निकालिए, और आप चेक करिए क्या सभी पाथ के लिए सभी की सेम लिमिट आएगी। जितने भी पाथ होंगे, इनफाइनाइट मैनी पाथ, देन यू कैन से द लिमिट एग्जिस्टेंस। बट सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको वो सिखा देता हूं। फाइन, देखो, सबसे पहले हमेशा कोई भी एग्जांपल हो, सबसे पहले चेक करिए हॉरिजॉन्टली। इस लाइन के ऊपर क्या है आपका? y0, तो दैट मीन्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, और यू कैन से ऑन द हॉरिजॉन्टल पाथ y इज माई 0, तो इसके अंदर y फिल करो 0, तो लिमिट कितनी आ गई? x माइनस 0, x प्लस 0, तो अब आपका एक ही लिमिट रह गया, तो x अप्रोचेस 0, कितना आंसर हो गया? 1। फाइन, सिमिलरली अगर आप वर्टिकल पाथ लेते हो तो वर्टिकल पाथ में क्या वैल्यू है? x0, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? -1। तो कैन यू से बोथ द लिमिट्स आर सेम? नो। तो अगर आपको दो पाथ कोई ऐसे मिल जाए जिसकी लिमिट सेम नहीं है, दैट मीन्स द लिमिट डज नॉट
एग्जिस्टेंस। अगर इन दोनों पाथ से लिमिट सेम आ जाती देन यू कैन लुक फॉर द थर्ड पाथ। फाइन, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे लेकिन मैं वो भी सिखाऊंगा आपको इस पूरे लेक्चर सीरीज के अंदर। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना, आपको पूरा लेक्चर इजीली समझ में आ जाएंगे। सो व्हाट यू कैन से द गुड लिमिट बिहेव लाइक अ फेथफुल रिलेशनशिप। जैसे मैंने पहले बताया आपको, गर्लफ्रेंड बनाइए बट फेथफुल रिलेशन के साथ। नो मैटर विच पाथ यू कैन चूज बट यू कैन ऑलवेज रीच टू द सेम destination. Fine. If the different path give the different destination, the relationship fail. Similarly, the limits is also fail. अगर आप सीखना चाहते हो और अलग मेथड से, तो आप मेरा ये लेक्चर 15 प्लस एग्जाम्पल के साथ इसी प्लेलिस्ट के अंदर पहला लेक्चर आपको मिलेगा 15 प्लस एग्जाम्पल ऑफ द 2 पाथ टेस्ट के साथ। इस लेक्चर को सुनिए, यू विल सी लर्न हाउ यू कैन चेक अबाउट द पाथ वेरी सिंपल मैनर। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आप मोर लेक्चर चाहते हो इस तरह से इंटरेस्टिंग, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अपलोड फॉर यू वेरी सून। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस ऑलवेज।